జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈ దేశం వికసిత్ భారతే లక్ష్యంగా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గిరిజన బిడ్డల యొక్క జీవితాలు కూడా వికసిత్ తెలంగాణ వైపుగా వికసిత్ భారత్ వైపుగా అడుగులు ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు మాననీయులు నితిన్ నబీన్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ ఓరుగల్లు జిల్లాకి విచ్చేసినటువంటి సందర్భంగా ఈ గిరిజన ప్రాంతమైనటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని దృష్టిలో తీసుకొని ఈరోజు గిరిజన జాతి యొక్క ప్రతినిధులతోని ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులతోని పార్టీలో గత అనేక సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి నాయకులతో మరి డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు ప్రొఫెసర్లు మరి రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అనేక మంది మన మధ్యలో ఉన్నారు. మరి అందరితో కూడా ఈరోజు సమావేశం అవుతానని చెప్పేసి వారు ఈరోజు మనల్ని అందరినీ కూడా కలుస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఈ వేదిక ద్వారా శ్రీ నితిన్ నబీన్ గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా సాదరపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా వారికి స్వాగతం తెలియజేయాల్సిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా మన మధ్యలో తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు మాననీయ శ్రీ ఎన్ రామచంద్రరావు గారికి కూడా గట్టిగా ఈ వేదిక ద్వారా చప్పట్ల ద్వారా స్వాగతం తెలియజేయాల్సిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా మన యొక్క గిరిజన జాతి ముద్దుబిడ్డ ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ గోడెం నగేష్ గారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా స్వాగతం తెలియజేయాల్సిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. వారితో పాటుగా మరి బంజారా జాతి యొక్క ఆణిముత్యం గిరిజన బిడ్డల యొక్క ఆశాజ్యోతి అయినటువంటి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రొఫెసర్ శ్రీ సీతారాం నాయక్ గారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా స్వాగతం తెలియజేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. మరి మన్నించాలన్నా మన మధ్యలో భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అసెంబ్లీలో ఫ్లోర్ లీడర్ అయినటువంటి శ్రీ ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి అన్న గారికి గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా స్వాగతం తెలియజేయాల్సిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు శ్రీ అమర్ సింగ్ తిలావత్ గారికి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ శ్రీ కళ్యాణ్ నాయక్ గారికి అదేవిధంగా బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ సోలంకి శ్రీనివాస్ గారికి అదేవిధంగా బీజేపీ ఎస్టీ మోర్చా జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు మా అక్క సోదరిమణి బాబీ గారికి అదేవిధంగా నిర్మల్ జిల్లా అధ్యక్షులు సోదరులు రితేష్ రాథోడ్ గారికి మరి యొక్క సమావేశంలో పాల్పంచుకుంటా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ నలుమూలల నుంచి విచ్చేసినటువంటి నా గిరిజన బంధు మిత్రులందరికీ మా సంతు సాధువులకి పత్రికా మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈ యొక్క సమావేశాన్ని జాతీయ అధ్యక్షులు మరియు రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారు నంగారా ద్వారా ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ప్రారంభం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. మధుసూదన్ శ్యామ్ రాథోడ్ షాల్వాల్ బొకేస్ తీసుకు అన్న దయచేసి వెనకాల జరగాలి ప్లీజ్. వద్దు ఏమొద్దు చెప్తాను. అదేవిధంగా మన మధ్యలో పెద్దలు హుసేన్ నాయక్ గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారికి కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నా. జాతీయ అధ్యక్షులు నితిన్ నబీన్ గారికి మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు గారికి కార్యక్రమం ఉంటుంది.
దయచేసి అందరు దిగాలి, వేదిక దిగాలి, స్టేజ్ దిగాలి ప్లీజ్. దయచేసి దిగాలి, స్టేజ్ దిగాలి, స్టేజ్ దిగాలి. అందరు కూడా స్టేజ్ దిగండి. మధు అన్న రండి, అందరు కిందికి రండి, కిందికి రావాలి. సమావేశం అయిన తర్వాత వారు అందరితో కలుస్తారు మనతోని. నరేష్ బికానా దిగండి ప్లీజ్. దయచేసి మధు దిగండి అబ్బా ప్లీజ్, దిగండి అన్న. ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా, तिलावत साहब आप बैठ जाइए साहब प्लीज, आप बैठ जाइए प्लीज. మీరు కూర్చో, ఎవరు రాకండి పైకి. రానా రితేషనా? దయచేసి దిగాలి, అందరు కూడా దిగాలి. దిగండి అన్న, దిగండి. దిగు 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 దిగు, తిరుపతి దిగు. ధన్యవాదాలు అందరికి కూడా. అందరు కూర్చోవాలి, ఎక్కడికక్కడ మీకు కేటాయించినటువంటి చోట మీరు కూర్చోండి. దయచేసి అందరు కూర్చోవాలి, దయచేసి అందరు కూర్చోవాలి. భారత్ మాతాకి జై, సేవలాల్, జై కొమరం భీం, జై ఏకలవ్య. దయచేసి కూర్చోవాలి అందరు ప్లీజ్. అక్క అక్క నేను కల్పిస్తాను మీకు మళ్ళీ. అక్క నేను మళ్ళీ కల్పిస్తాను, కూర్చోండి. దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్. అక్క నేను అరుణక్క, నేను మీకు కల్పిస్తా, కాదు నా బాధ్యత. అరుణక్క సమావేశం పూర్తయినాక నేను నీకు కల్పిస్తాను, నా బాధ్యత. నేను కల్పిస్తాను మీకు, మీరు కూర్చోండి ప్లీజ్. మీరు అందరు సహకరిస్తే సమావేశము సజావుగా సాగుతుంది. దయచేసి కూర్చోవాలి ప్లీజ్. మనం అందరం కూడా మన జాతిలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులం. దయచేసి కూర్చోవాలి ప్లీజ్. సహకరించండి అందరు కూడా, సహకరించండి అందరు కూడా దయచేసి. మరి ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటా ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ, మరి వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాగతం, సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ, మరి ఈ వేదిక ద్వారా యావత్ గిరిజన సమాజం పక్షాన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రామచంద్రన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుల వారు చరిత్రలో లేనట్టుగా ఈరోజు గిరిజన బిడ్డలతో ఈరోజు మా జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుల వారిని ఈరోజు సహపంక్తిని భోజనం చేయించడం కావచ్చు, మరి దాంతోపాటుగా మన మధ్యలో కూర్చొని మన యొక్క సాధక బాధలన్నీ కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గిరిజన బిడ్డల యొక్క భవిష్యత్తుని దృష్టిలో తీసుకొని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనకి ఇవ్వడాన్ని మనం అందరం కూడా ఎంతో అదృష్టంగా భావించాల్సిందిగా మీ అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి యొక్క సమావేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. మరి ముందుగా ఈ యొక్క సమావేశాన్ని మరి ఇదే ఓరుగల్లు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి పెద్దలు, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్, మరియు మహబూబాబాద్ జిల్లా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మరి పెద్దలు శ్రీ సీతారాం నాయక్ గారిని యొక్క సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. అందరికీ నమస్కారాలు. ఎందుకో ఇది ప్రజా మీటింగో లేదా పబ్లిక్ మీటింగ్ కాదు. ముందు తెలుగులో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు 22 రాష్ట్రాల పరిపాలిస్తున్న పార్టీకి ఒక అధినేత, అధ్యక్షులు. ఇది చాలా తక్కువ అవకాశం వస్తుంది. కానీ నేను చూస్తున్నా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది ఒక గిరిజన సమ్మేళనం. ఇది కేవలం
ఏదో ఒక పార్టీకో ఎవరికో సంబంధించింది కాదు. ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు, సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. అందులో ఇంకో రకంగా ఉంటున్నారు, కొంత డిసిప్లిన్ ఏదో తప్పుతున్నట్టు. ఆయన ఏం చెప్తారో ఏం మాట్లాడతారో దయచేసి మనకి ఏ సందేశం ఇస్తున్నారు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గిరిజన జాతి ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. యాప సీతయ్య గారు వేదికపైకి రావాలి. కోట్నాక విజయ గారు, మన యాప సీతయ్య గారు ప్లీజ్ రండి రండి. కోట్నాక అన్న మీరు ఇద్దరు కొంచెం మీరిద్దరు కొంచెం 2 కుర్చీలే सर। मंच पर उपस्थित महागण सर राष्ट्र अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी और तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामचंद्र राव जी, हमारा वरिष्ठ नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नागेश जी, हमारा तेलंगाना असेंबली के फ्लोर लीडर हमारा महेंद्र रेड्डी जी, सबको प्रणाम करता हूँ। सर आज ये ऐसी मौका है कि देश में आज पूरा, मैं सुबह कल से हम देख रहे कि एक देश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आज 22 राज्यों में अधिकार में है, उस पार्टी का एक अध्यक्ष वरंगल आते हुए आज एक स्पेशल प्रिविलेज आज तेलंगाना का आदिवासी को आप दिए। साहब मैं सबके पक्ष आपको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। इसका कारण हमारा अध्यक्ष है रामचंद्र राव साहब। इतना करे साहब, हम करें तो नहीं हम जरूर। साहब भी बोले आप ये रखो। सर मैं 1 2 3 सूची दे के मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ कि उधर भी टाइम वो हो गया है। सर यहाँ पे तेलंगाना हासिल करने में, यहाँ का तेलंगाना में आंध्र प्रदेश डिवाइड होने के बाद बिल्कुल नज़दीक एक 70 साल के बाद जो हमारी आशाएं पूरी करे, उसमें ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं तब मैं पार्लियामेंट के लिए ये कर रहा था। 2 जून 2014 में उस दिन सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज अगर नहीं मदद करा तो तेलंगाना नहीं आती थी। साहब ये किसी को बहुत से आदमी लोगों को इसकी जानती है। इसलिए हम तेलंगाना में आज भी स्वर्गीय सुषमा स्वराज को चिन्नम्मा बताते। हम आज भी चिन्नम्मा बोल के हम वो गौरव भी हमारे पास है साहब। वो होने के बाद में जो भी तेलंगाना डिवाइड होने के बाद में यहाँ पे एक 14 कम्युनिटीज़ है। वो 14 कम्युनिटीज से अब यहाँ पे जो भी बैठे हैं साहब, वो लंबाड़ीस कहते हैं, वो बाहर बंजारा के नाम में जाना जाते हैं। उसके पास कोया, गोंड, नायकपोड, एरकला, परदान, इतने कम्युनिटी का सभी है साहब। ये खाली एक पार्टी का नहीं है, इसमें भी रिटायर्ड है ऑफिसर से सब, पूरे 50 मेंबर्स तो रिटायर्ड ऑफिसर से। क्या कहेंगे हमारा देश का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हमारा भविष्य के लिए क्या ला है बोल के वो लोग ने देख रहे साहब आपके वास्ते। क्योंकि 12 साल की मोदी सर की सरकार में अभी तक 12 साल में सर बिरसा मुंडा का जयंती का देश भर में करके हमें एक भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के साथ है, हमें कुछ न कुछ तो होगा। मैं एक बात बता के आपसे इसको समाप्त करता हूं सर। अक्टूबर 4 2024, अक्टूबर 2024 इस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत के नाम से
सर देश में लगभग एक ही भाषा भूषण बात करने वाले 15 करोड़ है सर, 12 से 15 करोड़ है, 12 से 15 करोड़ है। साहब कैसे जाने कि हमें समझ में नहीं है, लेकिन 75 साल में हमारी जो ये ट्राइबल अनुसूचित जनजाति है ना सर, उसके बारे में हमें कोई उजालने वाले नहीं थे। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जो छुपी हुई हमारे इतिहास है उससे बाहर ला के एक ही बताता कि 900 करोड़ रुपए का एक नगारा भवन बना के हमारा बंजारा विरासत के लिए बचा रखा है सब। वो हम धन्यवाद करते हुए, हमारी मांग बहुत से, लेकिन ये मांगने की समय नहीं है, जगह नहीं है। हम खुद आपसे मिलेंगे साहब, ये तो वादा करते हैं कि जो हम लेना है, हम क्या करना है, हम आपके इंतजार में है साहब। जरूर ये आपके सामने लाके हम हमारी जो मांग है, जो कांग्रेस में जो हमें नहीं मिली, वो जरूर हम लेंगे बोल के वादा देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। हर एक बार आपको धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी आदिलाबाद के पार्लियामेंट मेंबर श्री गोडेम नेगे जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करें और बात करें। आप भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। हम सबके और इस देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन को मेरे ओर से और सारी तेलंगाना प्रांत के ओर से, जनजाति समूह से मैं स्वागत करता हूं सर आपको। मंच पर उपस्थित इस प्रांत के तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष रामचंद्र राव जी, सभी सम्मानगण, सभी को मेरा स्वागत। और जो इस संवाद में जो भाग ले रहे हमारे शेड्यूल ट्राइब के, आदिवासी के सभी सम्मान, यहाँ पर समाज में अच्छे उनसे संवाद रखने वाले सभी सम्मान लोगों को भी मेरा स्वागत है। सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर। ये तेलंगाना सर आपको जानकारी है सर, क्योंकि रामजी गोंड का, कुमरम भीम का ये जन्म का धरती है सर। यहां पर इस तेलंगाना में सर, जो अभी हमारे सीताराम नायक जी ने जैसे कहा, 9 यहां पर शेड्यूल ट्राइब में 9 सब कास्ट है सर। बंजारा हो, कोया हो, गोंड हो, नायकपुड़, कुलाम और आंध। जैसे ही भारत देश में कोने कोने के आदिवासी, जैसे ही उनका व्यवहार रहता है, भाषा रहता है, उनकी समस्याएं भी वैसे ही रहते हैं सर। सेम हमारे तेलंगाना में वही स्थिति है सर। लेकिन जब इस देश के अपने यशस्वी प्रधानी नरेंद्र मोदी जी आने के बाद मैं गर्व से कहता हूं सर, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति में भी जो पिछड़ा हुआ है, पीवीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए उसका 100% वो गांव का जो समस्या है हल करने के लिए, इंडिविजुअल का उनका हल करने के लिए 74,000 करोड़ रुपए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम जो आदिवासी क्षेत्र में भारत देश के कितने भी पीवीटीजी है उनको मान्यता देकर उनकी सुविधा के लिए कार्य होता रहा है सर। तेलंगाना में भी 909 गांव में हर तरीके के
प्रधानमंत्री आदिवासी ग्राम योजना हो, धरती आबा हो, जनमन कार्यक्रम हो, ये सारे कार्य हो रहे सर। सर क्योंकि मैं पहले ही मेरा भाषण शुरू करते ही रामजी गोंड का कुमरम भीम का जिक्र किया सर। कई कितने की साल से जब जैसे महाराष्ट्र में अभी जैसे वहां पर बंजारा समाज के जैसा वहां कार्य हो रहा है, अपने तेलंगाना में भी सर फर्स्ट टाइम रामजी गोंड का एक स्मृति स्थल, स्मृति वन और लाइब्रेरी संग्रहालय 25 करोड़ देकर हैदराबाद में संग्रहालय अपने मोदी जी साहब ने हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पर काम हो रहा सर। वैसे ही जंगल जमीन के जो आदिलाबाद क्षेत्र में जो कार्य किया कुमरम भीम का जोड़ेघाट का स्थल भी, वहां पर भी काम हो रहा है सर। वहां पर भी उनका भी वहां संग्रहालय हुआ सर। मैं अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए सर, क्योंकि हम आज यहां पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आए सर, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स हो, बहुत सारे समाज के अच्छे ताल्लुक रखने वाले सभी यहां पर पधारे हुए सर। आप उनसे थोड़ा संवाद करके और कुछ हमारे, क्योंकि और बहुत सारे मांगे तो रहते ही सर, कितने करते हुए रहते हैं सर, लेकिन हम सेपरेट 1-to-1 कभी तो मिलेंगे, हम बात करेंगे सर। इस संदर्भ में मुझे मौका दिया सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। ధన్యవాదాలన్నా. ఇప్పుడు తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర రథసారథి, మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలు, మరి ముఖ్యంగా గిరిజన బిడ్డలకు ఏదైనా ఆపద వస్తే క్షణాల్లోనే ఆ సమస్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సమస్య పరిష్కారం కోసం పోరాటం చేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో వికసిత్ తెలంగాణలో భాగంగా గిరిజనుల యొక్క శ్రేయస్సు, గిరిజనుల యొక్క అభివృద్ధి ఉండాలని చెప్పి ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు ఈ సమావేశానికి మనకు అవకాశం కల్పించినటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ ఎన్ రామచంద్రరావు గారిని మనల్ని అందరిని ఉద్దేశించి మార్గదర్శనం చేయాల్సిందిగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नितिन नवीन जी, ट्राइबल मोर्चा के अध्यक्ष श्री रवि नायक जी, सांसद आदिलाबाद के श्री गौतम नागेश जी, भूतपूर्व सांसद श्री सीताराम नायक जी, भूतपूर्व मंत्री अमर सिंह तिलावत जी, हमारे एलओपी महेश्वर रेड्डी जी, और इस मंच में बैठे हमारे प्रीतेश राठौड़ जी और बॉबी अजमेरा जी, सीता जी, और सबका नाम लेने में समय भी बहुत कम है, मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा सर। वैसे हमारे तेलंगाना के ट्राइबल्स के लिए पॉपुलेशन वाइज में 10% देना था सर, लेकिन जब केसीआर जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने वादा किया था कि 10% देंगे, लेकिन ये 10% ट्राइबल का रिजर्वेशन 12% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को देते हुए उस ट्राइबल का रिजर्वेशन उस बिल में डाल दिए और वो कोर्ट में अटक गया। उसके कारण आज हमारे तेलंगाना के ट्राइबल्स को जो रिजर्वेशन 10% आना था, इससे विलंब हुई। बहुत से ट्राइबल को उससे नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो 10% जो उन्हें आरक्षण दिया जाना था, वो मुस्लिम रिजर्वेशन के बिल के साथ जोड़ने से उनको आज बहुत बड़ा, आज कितना उनको नुकसान हुआ है, आज वो समाज खुद जानता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे ट्राइबल मिनिस्ट्री का गठन हुआ है, वो हमको याद रखना चाहिए, इससे पहले नहीं था। और एसटी कमीशन भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लाई थी। और आज हम देखते हैं कि सारे देश में आज ट्राइबल्स के जो सबसे ज़्यादा एमपीस हैं, जो एमपी एमएलएस हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ट्राइबल्स का उन्होंने कोई भला नहीं किया है, और ट्राइबल का उन्होंने
जितने भी उन्होंने काम किया ट्राइबल के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो बोलते हैं हमने ट्राइबल्स के लिए सब कुछ किया है, वो गलत है। ट्राइबल्स का अगर किसी ने कोई कल्याण किया है, अगर उनके बारे में कोई सोचा है, उनको आगे लाने के सोचे हैं, उनको पढ़ाई के लिए या उनके नौकरी के लिए जो भी अवसर दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मांग से हुई है कई राज्यों में। जब मैं अध्यक्ष बना प्रदेश का, तो मेरा सबसे पहला ट्रिप सर, मैं चंचू फॉरेस्ट में गया, वहाँ पर नलामला फॉरेस्ट गया, वहाँ के लोगों से मैं, मंगिया नायक भी यहीं पर है, उसमें मैं उनके साथ गया और रवि नायक भी आए थे। और वहाँ के लोग आज भी सर कपड़े ढंग से नहीं पहनते हैं, और वहाँ पर उस जंगल में जहाँ सेल फोन के टावर्स नहीं है, जहाँ रोड नहीं है, जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के गांव गरीबों को घर बनाए, पक्के घर बनाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन जनजातियों को, चंचू को वहाँ घर दिए और हर तरह की सुविधा, और ट्राइबल कोऑपरेटिव वहाँ पर जो है उनको मार्केटिंग के लिए भी अच्छी तरह से उनकी सुविधा दी है। तो इतने बातों से मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अध्यक्ष भी बात करेंगे, उसके बाद मुझे और एक मीटिंग जाना है। फिर एक बार मैं हमारे यहाँ पर आए हुए सारे बुद्धिजीवियों को और एसटी जो ऑफिसर्स हैं, रिटायर, उनके साधु संत हैं, और सेवालाल के बारे में भी मैं कई बार जा चुका हूँ सेवालाल के कार्यक्रम में, और साथ खासकर सीताराम नायक जी और गोदाम नागेश जी, ये सब भी हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे हमेशा ट्राइबल राइट्स के लिए काम करते हैं। मैं उनको अभिनंदन देते हुए ये अवसर दिया मुझे, आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत ధన్యవాదాలు అన్న, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అన్న। రాష్ట్ర జాతీయ అధ్యక్షులు ముఖ్య అతిథి వారు మాట్లాడే ముందు వారికి ఒక చిత్రపటాన్ని బహుకరించబోతా ఉన్నా, దయచేసి। హలో, అక్కడ బహిరంగ సభకి వెళ్ళాల్సింది, దయచేసి పెద్దలందరికీ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆసనం కావాలి అన్న, ఎవరు కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేజ్ దగ్గర ఉండకండి ప్లీజ్, అర్థం చేసుకోవాలి। అధ్యక్షులు గారు చెప్పండి, మీరు పంపించండి, ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళి పంపించండి అన్న, మీరు అందరు ఖాళీ చేయండి ప్లీజ్, అక్కడ ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తారు అందరూ అన్న, పబ్లిక్ మీటింగ్ దగ్గర అందరు కూడా వెయిట్ చేస్తారు ప్లీజ్, దయచేసి వీళ్ళ మీరు కిందికి దిగండి, కిందికి దిగి సాయి అందరిని పంపించు, బిలోజీ డాక్టర్ అందరిని పంపించు, పంపించే అందరు అన్న, పంపియవే అన్న, ప్లీజ్ పంపించాలి, అందరు కూర్చోండి, పంపాలి అన్న, సాయి విశాల్ పంపి అందరిని అన్న, అందరు కూర్చోండి ప్లీజ్, మీరు కూర్చోండి, దయచేసి కూర్చోవాలి। భారత్ మాతాకి అన్న, మీరేంటి విజయ్, చివరిగా యాపసీతయ్య గారు మరి కోట్లాక విజయ్ గారు ముఖ్య అతిథి అధ్యక్షులు నితిన్ గారికి వారు సన్మానం చేస్తారు। దయచేసి అందరు వెళ్ళిపోవాలి ప్లీజ్, అందరు వెళ్ళిపోవాలన్న, దిగండి అన్న, దిగండి ప్లీజ్, అందరూ దిగాలి, దిగండి అన్న ప్లీజ్।
చెప్తే అర్థం కావట్లేదు. కూర్చోండి అందరు దయచేసి, అందరు కూర్చోండి అంటున్నా. చెప్తే సురేందర్ అందరు కూర్చోండి. సంతోష్ వెళ్ళండి కూర్చోండి. అన్నా మీరు వెళ్ళి కూర్చో. मैं आज के मुख्य अतिथि के रूप में इस तेलंगाना की पुण्य धरती पर पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करें. भारत माता की जय. शमक्का सालगमा, जय कोमराम भीम, जय राम जी गौर, जय सेवालाल महाराज जी की. एक बार सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं. मैं आप सबके सम्मान को हाथ जोड़कर ग्रहण करता हूं. जो लोग भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, मैं सबके सम्मान को लेता हूं और सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं. मैं जानता हूं समाज में अनुसूचित जनजाति समाज एक ऐसा समाज है जो हर अतिथि को सम्मान देने में अपना सबसे अधिक परिश्रम, अपना सबसे अधिक भावना रखता है. तो मैं पूरे समाज के लोगों को, अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का अभिनंदन करता हूं. मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं. आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है और आज इस अवसर पे हमारे अध्यक्ष श्री एन रामचंद्रन राव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने समाज के साथ बैठने का अवसर दिया, गुरुजनों के साथ बैठने का जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से मैं अपने आप को इसके लिए सौभाग्यशाली मानता हूं. हमारे फ्लोर लीडर ए महेश्वरी जी, हमारे एमपी गोडम नागेश जी, हमारे एक्स एमपी सीताराम नायक जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कल्याण नायक जी, हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष रवि नायक जी, हमारे डॉक्टर सोलंकी जी, अमर सिंह जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित समाज के सम्मानित प्रबुद्धजन. सर्वप्रथम मैं परम पूज्य संत रामराव बापू महाराज जी को, कन्नू नायक जी को और जथोट तन्नू नायक जी को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. आज का दिन जब लावांडा, कोया, गौर यहाँ पर उपस्थित सभी जनजाति समुदाय के हमारे भाई बहन उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको आज के दिन आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. मित्रों, हमारे पूर्व के वक्ता अभी कई चीज़ों की चर्चा कर रहे थे और मैं देख रहा था कि जो गहरा सम्मान, जो पूरा विश्वास आपने अपने नेता माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे किया है, नरेंद्र मोदी जी ने भी उस सम्मान का अपना कर्तव्य समझते हुए इस समाज को सम्मान दिलाने में, उनके जीवन के मूल्यों के साथ साथ उनको जीवन के स्तर को सुधारने में लगातार प्रयास किया है. और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से जनजातीय चेतना पूरे देश और पूरे विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और हर समाज चाहता है उसका सम्मान भी बढ़े, उसके जीवन स्तर में सुधार भी आए और वो भारत के विकास में अपना योगदान भी दे. मैं आज बंजारा समाज के आराध्य महान संत, समाज सुधारक संत सेवालाल महाराज जी को भी सादर नमन करता हूँ. उनके जीवन का जो सत्य, सेवा और प्रकृति के संरक्षण का जो भाव और न्याय का जो उनका संदेश था, वो निश्चित रूप से आज करोड़ों लोगों को संदेश देता है, प्रेरणा देता है. मैं मेदाराम
की पावन धरती पर विराजमान माता समक्का और माता सारलम्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। वनवासी समाज के गौरवशाली परंपराओं को जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, जिस प्रकार से उन्होंने हम सबको कह सकते हैं कि आज उस समय कुप्रथा के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा उन दोनों ने दिखाया, निश्चित रूप से आज भी महिलाओं के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का सूत्र है। और मैं मानता हूं कि उस कालखंड में भी जिस समय उन्होंने संघर्ष किया उस काले कानून के खिलाफ, कहीं ना कहीं आज में भी भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अधिकार निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़ाने का प्रेरणा मिलता है। मैं महान आदिवासी वीरों कमाराम भीम और रामजी गोडसे को भी नमन करता हूं। एक ऐसे निर्भीक योद्धा जिन्होंने केवल आदिवासी स्वाभिमान को ही नहीं, अपने बलिदान देकर अमर प्रतीक के रूप में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए आज भी अनुकरणीय है। और मुझे लगता है तांडा से लेकर जनजाति बस्तियों तक और आदिलाबाद के घने जंगलों तक जिस प्रकार से पूरा पर्वत श्रृंखलाओं का एक इलाका है और जिस प्रकार से इन घोर घने जंगलों में आज भी भारत के लोग और भारत की परंपराएं वहां जीवित हैं, मैं उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए अपने समाज के सभी वर्गों के लोग को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के दिन जब चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं कि समाज को सम्मान दिलाने का और उनका अधिकार दिलाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस देश को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जिस प्रकार से एक महिला, आदिवासी समाज की एक ऐसी महिला को सम्मान दिलाया जिसका जीवन संघर्ष के रूप में आगे नजर आया, आज द्रौपदी मुर्मू के रूप में हमें एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो केवल देश को ही नहीं, समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को संदेश देता है कि भारत अपने समाज के आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ उनके संघर्ष को किस प्रकार से नतमस्तक होकर सलाम करता है। और आज भारत का प्रथम नागरिक कोई है तो देश का प्रथम महिला, और हम कह सकते हैं एक ऐसी राष्ट्रपति जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, समाज के विषयों को लेकर संघर्ष किया और आज देश की राष्ट्रपति के रूप में हम सबको सुशोभित कर रही हैं। आज के दिन मैं निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा की उस धरती को नमन करता हूं। आपको जानकर ये खुशी होगी, जो रांची भगवान बिरसा मुंडा की धरती है वो मेरा जन्म स्थान भी है, मेरा जन्म उसी रांची में हुआ है। और बिरसा मुंडा की उस धरती को से आने के कारण मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस को बिरसा मुंडा के जन्म तिथि 15 नवंबर को से जोड़ा, मैं मानता हूं कि समाज को सम्मान, समाज के पुरोधाओं को सम्मान और मैं कह सकता हूं संघर्ष को सलाम करने का काम, प्रणाम करने का काम हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए आज इन वाक्यों को कह रहा हूं। मित्रों, कई बार हम अपने अगल बगल देखते हैं और सोचते हैं क्या क्या बदला कि नहीं बदला, लेकिन मित्रों हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज में जन्म क्यों न ले, हमेशा चाहता है कि पहले सम्मान मिले और फिर तो संसाधन मिलेगा ही। जो व्यक्ति सम्मान देगा वो निश्चित रूप से संसाधन की भी चिंता करेगा, आपकी समस्याओं को समाधान के लिए भी लेके आगे बढ़ेगा। मुझे याद है कुछ दिन पहले बिहार में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी जमुई गए थे, पिछले वर्ष की बात है। और जिस प्रकार से जमुई से उन्होंने पूरे जनजाति समाज को संबोधित किया था और करीब हजारों करोड़ की योजनाओं का सौगात उस समय दिया था, आज जब मेरे पूर्व के वक्ता चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद अगर मैं कह सकता हूं कि जनजाति समाज को, हमारे उनके पुरोधाओं को सम्मान के साथ साथ
उनका विश्वास भी जीतने का काम किसी ने किया है तो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए आज इसकी चर्चा कर रहा हूं, मेरे कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं और आप लोगों ने अपना जीवन लंबे समय तक सरकार के कर्मचारी अधिकारी के रूप में सेवा के साथ किया है। आपने कई कालखंड देखे हैं, लेकिन मुझे आज बताते हुए इसलिए फक्र होता है अपने नेतृत्वकर्ता पे कि जिस भारत को जनजातियों के विकास के लिए 2014 के पहले इस भारत सरकार का बजट मात्र 4000 करोड़ होता था और उस 4000 करोड़ के बजट से समाज के विकास की बात करी जाती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2025-26 में करीब 15,000 करोड़ का बजट इस समाज के विकास में ये लग रहा है और मैं मानता हूं केवल योजनाएं कागजों में नहीं बन रही हैं, योजनाओं का आकार केवल आंकड़ों में नहीं है, योजनाओं का आकार का पूरा रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। जिस पीवीटीजी के ग्रुप की बात कर रहे थे और मुझे जो जानकारी मिली कि जनजाति गौरव दिवस के दिन 2023 में ऐसे तो 76,000 करोड़ की कुल राशि है, लेकिन 2023 में ही करीब 24,000 करोड़ की पीएम जनमन योजना की शुरुआत हुई। ये योजना उन 18 राज्यों में 75 जो पीवीटीजी ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया है, 22,500 गाँव में जो हमारे जनजाति समाज के भाई बहन रहते हैं उनके उत्थान के लिए, उनके गांव के पक्के आवास के लिए, स्वच्छ पेयजल के लिए, बिजली, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार, ऐसे सभी सुविधाओं को उस गांव में कैसे पहुंचाया जाए जहां से हमारा जनजाति भाई निश्चित रूप से अपना घर नहीं छोड़े, अपना जंगल नहीं छोड़े, अपना जड़ को नहीं छोड़े, हम वहीं तक विकास की किरणें पहुंचाना चाहते हैं। इस संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं आज इसलिए बात कहा क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी के रूप में 5 साल काम किया हूँ और छत्तीसगढ़ तेलंगाना से बहुत ही नज़दीक का इलाका है। मैं आज एक और बात आपके सामने बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ, इस समाज को उसके इलाके में जिस प्रकार से नक्सल का खेल आज़ादी के बाद से लंबे समय तक खेलता रह गया, राजनीतिक लोगों ने कहीं ना कहीं उस समय के लोगों ने, उस कालखंड के लोगों ने केवल वोट बैंक समझा और नक्सल की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। और मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी, उस समय भी पूरी तरह से ड्राइव चलाकर नक्सल की समस्याओं को जड़ों से खत्म भी करने का प्रयास किया गया और कहीं न कहीं वहां उनके विकास के भी रास्ते दोनों ही कामों को समांतर रूप से किया गया और उसका नतीजा हुआ जो झारखंड के इलाके अंबिकापुर से सरगुजा से सटे हुए इलाके थे, जो पूरा रांची के इलाके झारखंड का इलाके था, वहां पर नक्सल की समस्याओं को हम सफलतापूर्वक उसी समय समाप्त कर चुके थे, 2018 का समय का था। लेकिन बीच के कालखंड में हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। 2018 में 5 साल फिर से वहां पर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को मौका मिला, लेकिन 5 सालों में फिर से नक्सल की समस्याओं को फिर से ताकत देने का काम और कहीं ना कहीं उनको सहयोग और समर्थन देने का काम वहां की कांग्रेस की सरकार कर रही थी। और माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमको पूरी तरह से नक्सल की समस्याओं को जड़ों से खत्म करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उन जंगल में नक्सलियों का नहीं, जनजाति समाज के भाई बहनों का राज होना चाहिए, उनके विकास की बात होनी चाहिए। इसलिए जब 2023 में फिर से जनता ने हम पर विश्वास किया तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से उस नक्सल ऑपरेशन की बात को आगे बढ़ाया और आज बस्तर से जुड़ा हुआ जो आपका तेलंगाना का इलाका है, आज पूरी तरह से नक्सल से मुक्त हो रहा है। और मैं मानता हूं कि उसमें पूरी तरह से तेलंगाना का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उन सभी इलाकों में
पूरी तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आज बस्तर के इलाकों में अगर आप जाइएगा, जो पूरी तरह से हमारा ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है, आज उस ट्राइबल बेल्ट में जाइएगा। मैं उस इलाके में काफ़ी समय काम किया। अबूजा, शायद नाम सुने होंगे, एक ऐसा जंगल था जो आज़ादी के 75 साल बाद भी उसका लैंड सर्वे नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? उस समय से लेकर जो सरकारें रही थी, क्यों नहीं इसके लिए पहल किया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि जिस समस्याओं का जड़ों से निदान हो, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम समस्याओं का निदान करेंगे, हम समाज के लोग को अगर पूरी ताकत देंगे, तो समाज के लोग अगर खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं उनका जो मॉडल ऑफ विकास है, उनका जो रणनीति है कि इनको केवल भरमाने की राजनीति, उसका उनको सफलता नहीं मिल पाएगा। और मैं आज इस बात को आपके सामने रखते हुए खुशी महसूस करता हूं कि आज बस्तर में नक्सल ही नहीं खत्म हुआ, बक्सर के पूरे रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। एक एक गांव में उस गरीब को, उस आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के लोगों को आवास दिया जा रहा है, उनकी शिक्षा की चिंता की जा रही है, उनके रोजगार के अवसर की चिंता की जा रही है। और मैं इस बात को अगर आपके सामने रख रहा हूं तो मुझे इस बात के लिए गर्व है कि आपने भी हमें बहुत आशीर्वाद दिया। और विष्णु देव साय के रूप में वहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरह से उन आदिवासी बहुल वाले इलाके के विकास के प्रति अपना संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मित्रों, मुझे अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि हैदराबाद में एक जनजातीय संग्रहालय का निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन मैं आप सबको बताते हुए खुशी है, केवल हैदराबाद में ही नहीं, पूरे देश में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण का काम चल रहा है, जहां महान योद्धा रामजी गोडसे को समर्पित हैदराबाद का एबिडस में बन रहा है। वहीं पूरे देश के अलग अलग इलाकों में 10 स्थानों पे ये काम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे उन वीर सपूतों को, हमारे आदिवासी जनजाति समाज के इतिहास को संजोने का केंद्र बनेगा, जिस पे हर भारतवासी को गर्व होगा कि मेरे आदिवासी जनजाति समाज के लोगों ने इस प्रकार से संघर्ष कर कर अपने जड़, जंगल, जमीन को भी बचाया और कहीं ना कहीं इस देश की विरासत और संस्कृति को भी बचा कर रखा है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल इन्हीं विषयों पर ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान समाज के शिक्षा व्यवस्था को भी लेता। और आज अभी मुझे आप चित्र का एक पूरा दे रहे थे, उसमें आपने एकलव्य की चिंता, एकलव्य के दृश्य को दिखाया। एकलव्य किस प्रकार का धनुर्धर था हम सभी जानते हैं। और मैं मानता हूं एक लक्ष्य लेकर काम करने का जो नेतृत्व उनके अंदर था, कि एक पाखी नज़र से अपने आप को, आँख कह सकते हैं कि पूरे मंजिल को देखते हुए काम करने का जो उनका स्वभाव था, वो कहीं ना कहीं एकलव्य का वो सोच आज हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक सोच बना है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाकर आज पूरे देश में कम से कम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, उनको आवासीय व्यवस्था में लाकर शिक्षा के साथ उनके निर्माण का काम, अपने आदिवासी भाई बहनों के छोटे भाई बेटे बेटियों को उनके भविष्य के निर्माण का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे बताते हुए खुशी है, केवल तेलंगाना में ही 23 एकलव्य मॉडल विद्यालय का काम चल रहा है। और मित्रों, पूरे देश में ऐसे 728 विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें करीब 7,000 करोड़ खर्च कर कर हम आदिवासी भाई बहनों के छोटे बेटा बेटियों को शिक्षित भी कर रहे हैं, उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे मालूम हुआ कि पोहरा देवी को याद करते हुए एक पल संत सेवालाल महाराज जी के श्री चरणों में समाज को दिशा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ आए थे और उन्होंने स्वयं पोहरा देवी पहुंचकर उनका आशीर्वाद और अपना संकल्प लेने का काम किया था। लेकिन मित्रों, हम जानते हैं कि समाज के उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संग्रहालय देने का काम किया, वो संग्रहालय एक संकल्प है
कि हमें समाज को विकास के पैमाने पे मुख्य धारा में लाकर अपने भाई बहनों और समाज के अंतिम व्यक्ति जो पैदान पे बैठा है उसको भी विकास की किरणों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमारे नेता आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, शायद इस नाम से हमारे समाज के लोग हो सकता है कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं कि जब लोग कहते थे कि भाजपा किस कार्यशैली से काम करती है, जनसंघ किस कार्यशैली का काम करता है, तो मुझे आज उसको बताते हुए गर्व होता है कि हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का कंसेप्ट दिया, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का काम आज हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर मैं कहता हूं कि जनजाति समाज के लोगों को उनके जंगल में, उनके घरों तक हम शिक्षा की व्यवस्था, हम पानी की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, उनके आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रेरणा से लेकर जो हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके प्रेरणा से कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से 1960 और 1950 के कालखंड में ही हमें एक दिशा दी थी, और लंबे संघर्षों के बाद जब आपने हमें मौका दिया तो हम उसी विचार को लेकर आज भी काम कर रहे हैं। तेलंगाना एक ऐसी धरती है जहां भारतीय जनता पार्टी को जब केवल 2 सांसद मिला था, उसमें से 1 सांसद तेलंगाना प्रदेश ने हमें दिया था। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही तेलंगाना की वैसी पार्टी बन के उभरेगी जो तेलंगाना के लोगों का, इस जनजाति समाज के लोगों का सपनों का तेलंगाना जो बनना आप जितनी कल्पना से आप तेलंगाना बनाए थे, वो सपना अगर साकार नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी सड़कों पे ताकि तेलंगाना के लोगों का सपना हम पूरा कर सकें। मैं मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने बंजारा विरासत को नगारा संग्रहालय का उद्घाटन करके जो तोहफा दिया, मैं आज समाज के सभी भाई बहनों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने स्पष्टता से काम किया है। हमारी सरकार ने नई इनोवेशन को, नए एआई टूल्स को, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की बात हो भारत को, चाहे हम सेमीकंडक्टर का यूनिट ला रहे हों, लेकिन हम सब के साथ अपने विरासत को भी उसी प्रकार से संजोने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज काशी विश्वनाथ हो, पवित्र अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे हमारे आदि कालखंड के आज बिरसा मुंडा के जन्म स्थान को जिस प्रकार से विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है, हम हमेशा मानते हैं कि जिस देश का और जिस व्यवस्था का अपने इतिहास पे गर्व नहीं होता है, जो अपने इतिहास को संजो के नहीं रखते हैं, उनका भविष्य भी सुनहरा नहीं बनता है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने मूल्यों को, जो हम जिस मूल्य से भारत, लोकतांत्रिक मूल्यों से जो भारत आगे बढ़ रहा है, उसको निश्चित रूप से उसकी रक्षा करना और उसको निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं आज अपने साधु संतों के बीच में बैठा हूं और मैं स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई संकल्प अगर लेता है तो उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करता है। और मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से आप सबकी उपस्थिति हुई और उपस्थिति में आप सब ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक उम्मीद के तरफ से देख रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी जनजाति समाज के सम्मान में, उनके अधिकार के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़कर काम करेगी। आपने कई अपने डिमांड्स हमें दिए हैं, कई आपने अपेक्षाएं रखी हैं, उन अपेक्षाओं को मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं और आने वाले समय में उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में 2028 का समय आएगा। निश्चित रूप से हमने तेलंगाना के कई विषयों को देखा है और कहीं ना कहीं जो लंबे समय से यहाँ की सरकारें ने केवल परिवार की चिंता की, केवल भ्रष्टाचार की चिंता की, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम तेलंगाना को उसके विकास के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। और 2028 में
अगर समाज का आशीर्वाद हमें मिला, हमारे गुरुजनों का हमें आशीर्वाद मिला, तो हम विकसित भारत का जो सपना 2047 में हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम विकसित तेलंगाना बनाने का भी सपना पूरा करेंगे। आज इस समाज के सभी लोगों के साथ बैठने का मौका मिला है। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का नेतृत्व है और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि समाज के हर वर्ग को हम विकास की योजनाओं से जोड़ेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सब। దయచేసి ఎవరు కూడా అడ్డం వెళ్ళొద్దు, దయచేసి ఎవరు కూడా అడ్డం వెళ్ళొద్దు, అందరు అక్కడే ఆగాలి, ఎక్కడికక్కడ ఆగాలి। ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఉంటుంది, సమావేశం పూర్తి కాలే, దయచేసి అందరు ఆగాలి, ఇక్కడ ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్ళొద్దు। ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పెద్దలు యాపా సీత గారికి వందన సమర్పణ చేయాల్సిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నా। వికసిత్ తెలంగాణ గిరిజన నాయకుల సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ 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 నితిన్ నవీన్ గారికి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు గారికి, ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు గడెం నాగేష్ గారికి, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు సీతారాం నాయక్ గారికి, గిరిజన మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రవి నాయక్ గారికి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర బీజేపీ ఉపాధ్యక్షులు కళ్యాణ్ గారికి,